Good morning, students. Welcome back to my channel. My name is Shivani Sharma. We were reading chapter number 4, Material, Metal and Non-Metals. Students, we have already studied the classification of element and physical properties of metal and non-metal. Today, we will have chemical properties of metal and non-metal. Chemical properties of metal and non-metal can be divided into the following categories, such as a reaction with oxygen, reaction with water, reaction with acid and base, and displacement reaction. Let us discuss some of these chemical properties below. So firstly, we look at the reaction with oxygen. Students, reaction of metal with oxygen. Metal are very reactive. They can very easily react with elements to form a compound. इनका कहने का मतलब है मेटल्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, इसीलिए वो इजीली रिएक्ट करके किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन करके कंपाउंड बना लेती हैं. मेटल लाइक अ सोडियम या पोटेशियम आर सम ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स. सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स कौन सी होती हैं? सोडियम और पोटेशियम. दे कंबाइन इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर फॉर्मिंग द करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स. वो एयर की प्रेजेंस में, एयर के संपर्क में आते ही क्या बना लेती हैं? मेटल ऑक्साइड बना लेती हैं. So firstly, sodium react vigorously with the oxygen present in air to form a sodium oxide. Hence, sodium is stored under kerosene to prevent it from reacting with air. इसीलिए क्या करते हैं? सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि वो एयर में आते ही क्या हो जाता है? रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है. The reaction of metal with oxygen is shown below. 4 molecules of sodium plus oxygen is given the compound name of sodium oxide. Like sodium oxide and potassium oxide, magnesium oxide also have a base band dissolved in water. Metallic oxide therefore is basic oxide. इन या नेचर, ये जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं नेचर में. एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्या कर देते हैं? लिटमस पेपर को ब्लू, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर द एलिमेंट इज ए मेटल एंड नॉन मेटल. Firstly, potassium plus oxygen equals to potassium oxide. Magnesium plus oxygen equals to magnesium oxide. Now, if a pieces of copper, pure gleaming copper, is exposed to air for some time, it combined with the oxygen present in a full form dull-looking copper oxide. Likewise, it is iron exposed to air. It is react with the moisture present in it, forming a reddish brown layer over it. This layer is called a rust. इन्होंने कहा है जब आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर, तो वो क्या बना देता है? आयरन ऑक्साइड्स बना देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं. इससे ही हम रस्ट कहते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन. जंग का ही सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? लोहे में जंग लगने का रस्टिंग. Corrosion is defined as the process of soon eating away of metal due to attack of atmospheric gas and moisture on the surface. वो जैसे ही कोई भी लोहा है, आयरन है,
वो एयर और मॉइस्चर के संपर्क में आते ही क्या कर देता है, जंग लगना शुरू हो जाता है। उसे ही क्या कहते हैं हम, कोरोजन। द रेडिश ब्राउन लेयर डिस्ट्रॉय द आयरन पार्ट्स ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड हाउस होल्ड आइटम्स। जो रेडिश ब्राउन कलर की जो लेयर बन जाती है आयरन पर, वो मशीन के द्वारा बिल्डिंग और स्ट्रक्चर और हाउस होल्ड आइटम्स बनाने में निकाली जाती है। Hence it is necessary to develop method to prevent rusting. इसके लिए लोहे में जंग लगने को रोकने के लिए एक प्रोसेस बनाई जाती है, मेथड का यूज किया जाता है। Preventing rusting of a substance is a commonly called rust proofing, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्ट प्रूफिंग प्रॉपर्टी। लोहे में जंग लगने के रोकने के लिए जो हम मेथड का यूज करते हैं वो क्या कहलाती है, रस्ट प्रूफिंग। इट कैन बी अचीव्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। नाउ मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। There are several ways of preventing rusting of iron. Some of these discussed below. Large objects such as a bridge or ship can be protected from rusting by using oil paint. Oil paint लगाकर हम क्या करते हैं, जो ब्रिज होते हैं और शिप होते हैं, इनमें जो लार्ज पिलर्स बनाए जाते हैं उनमें लोहे में जंग ना लगे, इसलिए उनमें क्या कर देते हैं, ऑयल पेंट कर देते हैं। मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय यूजिंग ग्रीस और ऑयल। जो पार्ट्स होते हैं मशीन के, उनको रस्ट से बचाने की, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ग्रीस और ऑयल का यूज करते हैं। आयरन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग थिन लेयर्स ऑफ जिंक कवर देम ओवर देम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ गैल्वेनेशन। जो आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए उन पर जिंक की कोटिंग की जाती है, जिसे हम गैल्वेनेशन कहा जाता है। वी कैन प्रोटेक्ट रस्टिंग ऑफ आयरन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ निकल एंड क्रोमियम। रस्टिंग, आयरन की रस्टिंग बचाने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ निकल का यूज भी करते हैं। क्रोमियम और निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है आयरन पर। वाई? बिकॉज iron protect by rusting. Plating with other metals such as tin and chromium can also be done of preventing rusting. रस्टिंग को क्रोमियम और थिन मेटल्स का भी यूज रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज की जाती है। आयरन कैन ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कन्वर्टिंग इट इज ऑल इनटू अलॉय सच एज अ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के द्वारा भी हम प्रोटेक्ट करते हैं। रिएक्शन विथ नॉन मेटल। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। कुछ मेटल्स रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन से और क्या बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। वहीं कुछ नॉन मेटल्स भी होती हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। सो फर्स्टली non-metal also react with oxygen to produce their non-metallic oxide. These oxides is called acidic oxide, जिन्हें हम क्या कहते हैं, acidic oxide कहते हैं। As they form acid when dissolved in water. जो क्या होती है, acid dissolve होती हैं waters में। So when carbon burn in oxygen इट फॉर्म कार्बन और डाइऑक्साइड। जब कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर, so to give the compound name is carbon oxide. Where sulfur burn with blue flame and pungent smell to form sulfur dioxide. Pungent means होता है तीखा, ब्लू फ्लेम के साथ तीखी स्मेल देता है। सल्फर प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर it gives us sulfur oxide.
These oxide dissolve in water to form acids. Carbon dioxide plus water, it is formed to carbonic acids. Now sulfur dioxide plus water, sulfur dioxide plus water is sulfurous acid. Now reaction with the water. Reaction of metal with water. Metal oxide react with water to form hydroxide, which are basic in nature. जो मेटल और मेटल ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि नेचर में बेसिक होते हैं. Some metal like sodium, potassium and calcium react vigorously even with cold water, giving a lot of heat. सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम जब रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट गेन करते हैं, देते हैं. Sodium react vigorously with cold water forming sodium hydroxide and hydrogen. जो हाइड्रोजन निकलता है वो क्या गैस फॉर्म में निकलता है. सोडियम प्लस वाटर प्रोडक्ट बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है, जो कि एयर में गैस के फॉर्म में निकल जाती है. मैग्नीशियम प्लस shows mild reaction with cold water and vigorous with hot water. जो मैग्नीशियम होता है वो हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है और इसमें भी हाइड्रोजन निकलता है, जो कि गैस फॉर्म में निकलता है. सम मेटल लाइक टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम. जो टिन है, लेड है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये जो मेटल्स होती हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, ना ही किसी स्टीम में ये रिएक्ट करती हैं. नाउ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर. Non-metal form oxide when they react with oxygen but do not react with water. जो नॉन मेटल्स होती हैं वो रिएक्ट तो करती हैं ऑक्सीजन के साथ, बट रिएक्ट नहीं करती वो वाटर के साथ. Some non-metal like phosphorus are very reactive, hence they are stored in water. जो phosphorus होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए उसे वाटर में रखा जाता है. Phosphorus catches fire as soon as it comes in contact with air. phosphorus को वाटर में स्टोर करके रखा जाता है. यदि in case of water contact with air, it is very reactive. आग लग जाती है अगर वो एयर के संपर्क में आ जाए तो, इसीलिए इसे हम स्टोर करते हैं कहाँ पे, वाटर में. नाउ रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड. रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड. All the metal react with dilute hydrochloric acid to give bubble of hydrogen and colorless solution of metal chloride. Metal shows violent reactions with acids such as sodium and potassium. यहाँ इन्हें ये बोला है कि जो metals होती हैं वो dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके गिव बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस के बबल और कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ मेटल क्लोराइड बनाती हैं. मेटल लाइक सोडियम प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड both are react together. It is formed to sodium chloride plus हाइड्रोजन गैस रिलीज. जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो कलरलेस फॉर्म में बबल के रूप में निकलती है. वहीं यहाँ इन्हें जस्ट मेटल चेंज कर दिया, मेटल सोडियम की जगह आयरन ले लिया, तो आयरन
react with dilute hydrochloric acid, it give us ferrous chloride and hydrogen gas released. At the same time, aluminium plus 6 hydrochloric acid, dilute hydrochloric acid, it is react together, it is formed to aluminium chloride and hydrogen gas release. Now, magnesium react with dilute sulfuric acid to form magnesium sulfate and hydrogen gas release. तो मैग्नीशियम ने इधर पे ने डाइल्यूट में सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया. अभी तक हम क्या ले रहे थे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे थे. अब इन्हें क्या ले लिया, सल्फोनिक एसिड. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी. सम मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम below hydrogen do not react with dilute acid as they as less reactive than hydrogen. They cannot replace from dilute acid. इन्होंने कहा है जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम मेटल होती हैं ये बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, इसीलिए ये किसी भी एसिड से रिएक्शन नहीं करती हैं. और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड, नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड. नाउ वी लुक रिएक्शन विथ बेसिस. रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेसिस. मोस्ट मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ बेस. जो बहुत सारी मेटल्स जो होती हैं वो रिएक्ट नहीं करती हैं मेटल बेस से. ओनली वेरी फ्यू मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड react with a solution of strong base like sodium hydroxide to produce a salt that of metal and hydrogen gases. इन्होंने कहा है जो बहुत सी मेटल होती हैं जो बेस से रिएक्ट नहीं करती हैं, बट जो बहुत ज्यादा कम मात्रा में ऐसी मेटल होती हैं जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये क्या करती हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करती हैं. लाइक सोडियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट बनाती हैं ये. द मेटल एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं. दे डू नॉट रिएक्ट विथ वीक बेस लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही रिएक्ट करेंगी. मेटल जितनी भी मेटल होंगी वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेंगी, ये वीक बेस के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं. नाउ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ अ बेसिस. The reaction of non-metal with bases is a complex in nature. Non-metals क्या करती हैं, complex बनाती हैं नेचर में बेस के साथ. When chlorine react with a base, sodium hydroxide, it gives multiple product like sodium hypochlorite, sodium chloride and water. You will study these in your higher classes. ये आप जो कंपाउंड्स ने दिए हैं ये आप आगे अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे. Now we look at displacement reactions. When a metallic salt solution react with another metal, the more reactive metal displace the less reactive metal. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीनिंग होता है कोई भी मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन में जब हम दो मेटल को डालते हैं तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो डिस्प्लेस हो जाती है लेस रिएक्टिव मेटल के साथ. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बोथ मेटल एंड नॉन मेटल टेक पार्ट इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें दोनों मेटल यूज होती हैं, मतलब मेटल भी होगी और नॉन मेटल भी होगी. मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करेगी, नॉन मेटल मेटल से रिएक्ट करेगी. केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल लिंक्ड विद देयर relative position in the activity series. Certain metal have a capacity to displace some metal from a aqueous solution of their salt.
A metal placed higher is activity series in a displace the metal that occupy a lower position from the aqueous solution of its salt. For example, iron which is placed from higher in the activity series than copper. जो आयरन होता है वो कहाँ प्लेस्ड है आपका हायर सीरीज में, ऊपर साइड आता है, पहले को आयरन आता है फिर कॉपर आता है. रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से सबसे पहले कौन आयरन रिएक्ट करेगा? कॉपर हाउ एवर डज नॉट रिएक्ट विथ आयरन सल्फेट एज इट इज अ लेस रिएक्टिव. तो कोई भी मेटल जो होगी वो पहले कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगी, उसके बाद आयरन सल्फेट से रिएक्ट करेगी, क्योंकि आयरन सल्फेट क्या होता है, बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है. मेटल प्लेस हायर इन द एक्टिविटी सीरीज एंड मोर रिएक्टिव देन दूस मेटल प्लेस बिलो. फर्स्टली एक्वस सॉल्यूशन में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने आयरन मेटल से रिएक्ट कराया, तो फर्स्टली ये क्या करेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा, उसके बाद कॉपर निकल जाएगा. व्हेन स्मॉल क्लीन पीस ऑफ मैग्नीशियम are added into a dilute sulfuric acid, magnesium sulfate and hydrogen gas are formed. जब आपने मैग्नीशियम की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई. एटम ऑफ मैग्नीशियम डिस्प्लेस द एटम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड. यहाँ पर इनने ये बोला है मैग्नीशियम ने सल्फर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन और मैग्नीशियम का डिस्प्लेसमेंट कराया है. हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होके मैग्नीशियम आ गया और मैग्नीशियम हाइड्रोजन इजीली गैस फॉर्म में रिलीज हो गया. Uses of common metal and non-metal. Uses of some common metal and non-metal are given below. So firstly, uses of metal. Copper and aluminium wire are used to carry electric current. Aluminium और copper के generally wire बनाए जाते हैं जो electric current के लिए use करते हैं. Copper and aluminium and iron used to make a domestic utensils and factory equipment. फैक्ट्री के इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में आयरन और कॉपर और आयरन के एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं. टिन फॉइल्स ऑफ एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू वेपिंग मेडिसिन्स एंड कॉन्फेक्शनरी etc. एल्यूमिनियम सिल्वर फॉइल वगैरह बनाई जाती हैं खाना रैप करने के लिए. एल्यूमिनियम इज यूज टू मेक एलगी डोर पाइप etc. बनाने में हम क्या एल्यूमिनियम का यूज करते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बनाने में भी एल्यूमिनियम का यूज करते हैं. मेटल एज सच एज अ सोडियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम etc. आर यूज टू जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड इट स्पेस साइंस प्रोजेक्ट. ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट. मेटल कौन सी? सोडियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम. इसका यूज कहाँ करते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में इन अ स्पेस साइंस प्रोजेक्ट. गोल्ड एंड सिल्वर का यूज ज्वेलरी बनाने में किया जाता है. क्रोमियम एंड निकल आर यूज टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग इक्विपमेंट. जिंक इज यूज्ड इन अ कोटिंग आयरन शीट्स ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग of iron. It is also used to preparations of useful alloys such as a brass, bronze and German silver. जो जंग से बचाने के लिए हम जिंक का यूज करते हैं आयरन में, वहीं हम ये इन अलॉय से यूजफुल सामान बनाने के लिए यूज करते हैं. लेड इज यूज्ड टू फॉर मेकिंग अ पाइप, कंटेनर एंड corrosive liquids. ऐसे कंटेनर्स, ज्वेलरी, एल्यूमिनियम फॉइल एंड यूटेंसिल्स बनाने में मेटल्स का यूज किया जाता है. नाउ
we discuss uses of non-metals. Hydrogen is used to manufacture of ammonia gas. हाइड्रोजन का यूज अमोनिया गैस बनाने में किया जाता है. विच इज यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर सच एज यूरिया, अमोनियम सल्फेट. यूरिया और अमोनियम सल्फेट का यूज कहाँ करते हैं हम? फर्टिलाइजर में. हाइड्रोजन इज इम्पॉर्टेंट फ्यूल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हाइड्रोजन. इट इज़ यूज टू ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, ये टॉर्च बनाने में भी यूज़ करते हैं. वेडिंग में भी यूज़ करते हैं, वाइंडिंग में. Sulfur is used to manufacture of compounds such as sulfuric acid and sulfate and also production of matchsticks, dyes and gunpowders बनाने में सल्फर का यूज करते हैं. Phosphorus is used in the firework industries and for making special glass used in sodium lamp. Non-metal is also used for oxyhydrogen torch, matchsticks, sodium lamp and fertilizer. Silicon is used for making electronic component like transistors, integrated circuit, microprocessor and chip used in a computer. Graphite is form of carbon. It is soft and silvery and it is a use of lubricant in a powder form. It is good conductor of electricity and used as an electrode. Liquid nitrogen is used for a refrigerant. In hospital, it is used for storing human organs for transplantations at low temperature. It is also used in a manufacturing of fertilizer. सिलिकॉन का यूज हम जनरली ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट एंड माइक्रोप्रोसेसर्स एंड कंप्यूटर चिप बनाने में करते हैं. ग्रेफाइट फॉर्म करता है कार्बन का, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड फिसलाऊ, बहुत ज़्यादा पाउडर चिकने फॉर्म में होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है और इसका यूज हम इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं. लिक्विड नाइट्रोजन का यूज हम रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए यूज करते हैं. वहीं हॉस्पिटल में हम ह्यूमन ऑर्गन को फॉर ट्रांसप्लांटेशन के लिए लो टेम्परेचर पर रखते हैं. इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर बनाने में भी लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है. थैंक यू.